بسم الله الرحمن الرحیم۔ اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی۔ اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی، کیا ہوئے کسی شب کو جو ہم گھر میں نہ آئے، تم ہم کو نہ پاؤ تمہیں ہم بھی نہیں پائے، تڑپو گے نہیں در دس وعدہ کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی۔ اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو، بیٹھا کرو کچھ دیر چراغوں کو بجھا کر، سمجھا کرو اس خاک کو اے لادلی بستر، بالی کبھی یوں ہی نہیں پہنا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی۔ اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کچھ دیر کو یہ فرض کرو ہم نہ رہے گر، باقی نہ رہے ہاتھ کوئی رکھنے کو سر پر، ماحول یتیموں کا بھی سوچا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی۔ اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی۔ صلوات محمد۔ مینوں کے سینہ پر ہوں میرا وعدہ ہوا پورا، نانا میرا وعدہ ہوا پورا، ہے نانا دیکھو نواسا کہاں آ گیا، نانا دیکھو نواسا کہاں آ گیا، میں نے کرب و بلا کو معلیٰ کیا، خون میرا آج کھا کے شفا بن گیا، میں نے بچپن کا وعدہ وفا کر دیا، میرا وعدہ ہوا پورا، نانا میرا وعدہ ہوا پورا، مینوں کے سینہ پر ہوں میرا وعدہ
ہوا پورا میرا دین و قرآن بچے تیرا کعبہ بچا تا قیامت رہے گی اذان کی صدا مدرسہ بن گئی آج سے کربلا ہائے نانا مگر میرا گھر نہ رہا میرا وعدہ ہوا پورا نانا میرا وعدہ ہوا پورا مینوں کے سینہ پر ہوں میرا وعدہ ہوا پورا چکیاں پیسنے والی ماں کی قسم میری آغوش میں توڑا اکبر نے دم کیسے لاش جوان لایا سوئے حرم اپنے وعدے پہ سہتا رہا غم پہ غم میرا وعدہ ہوا پورا نانا میرا وعدہ ہوا پورا مینوں کے سینہ پر ہوں میرا وعدہ ہوا بھائی 32 برسوں سے جو ساتھ تھا میں نے وعدہ نبھانے میں وہ کھو دیا کھا گئی اس کے شانوں کو یہ القمہ وہ گیا اور درد کمر دے گیا میرا وعدہ ہوا پورا نانا میرا وعدہ ہوا پورا صلوات محمد غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشاں بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشاں بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشاں بہن بہن تیروں پہ تھا رکھا ہوا لاشا حسین کا ڈوبا ہوا لہو میں تھا کرتا حسین کا آواز تھی حسین کی بہنا کفن کفن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشاں بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشاں بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشاں بہن بہن ایک دن پہ داغ میں نے 72 اٹھا لیے کچھ داغ میں نے قلب کے اندر چھپا لیے چھپتے نہیں چھپانے سے داغ رسن رسن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشاں بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشاں بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشاں آئی نراس دو گھڑی
پردیس کی فضا کنبہ شہید ہو گیا میرا گھر اجڑ گیا پردیس دیس غیر کا اپنا وطن وطن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاپشا بہن بہنے میں بھائی بھائی کہتی تھی لاپشا بہن بہنے میں بھائی بھائی کہتی تھی لاپشا بہن بہنے صلی علی محمد و آل محمد جب پیو پانی میں علی کا نام لو جب پیو پانی حسین ابن علی کا نام لو جب پیو پانی حسین ابن علی کا نام لو الفت شبیر ہے تو غم کرو شبیر کا الفت شبیر ہے تو غم کرو شبیر کا حضرت عباس سے درد و وفا کا نام لو جب پیو پانی علی کا نام لو جب پیو پانی حسین ابن علی کا نام لو پرچم اسلام ہے عباس غازی کا علم پرچم اسلام ہے عباس غازی کا علم اس کے سائے میں رہو اس کا پررا تھام لو جب پیو پانی حسین ابن علی کا نام لو جب پیو پانی حسین ابن علی کا لو گرتے گرتے تم سنبھل جا او گے ہے دعویٰ میرا گرتے گرتے تم سنبھل جا او گے ہے دعویٰ میرا جب کبھی ٹھوکر لگے مولا علی کا نام لو جب پیو پانی حسین ابن علی کا نام لو جب پیو پانی حسین ابن علی کا نام لو بر محمد باول محمد صلی اللہ આપ સર્વેને જણાવતા ઘણી ખુશી ઉપજે છે કે સોસાયટી એલએમઓઈ તરફથી જેટલા પણ એને સોસાયટીમાં શિયા ભાઈઓ કામ કરે છે એ લોકો માટે આ વર્ષથી લોકોએ એક સિસ્ટમ કરી છે કે એ લોકો દર વર્ષે મુહર્રમ મહિનામાં એક તિરાજોસર કરશે અને જે પણ શિયા ભાઈનું તિરાજોસરમાં નામ આવશે એને અરબઈન માટે એક ઝિયારત ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની ઝિયારત ટિકિટ આપવામાં આવશે અને તેમને આ અરબઈનની ઝિયારતમાં મોકલવામાં આવશે
તો આ વર્ષ એ લોકો મેં પહેલી ફેર એ લોકો મેં આ સિસ્ટમને અપનાવી છે અને આ વર્ષે જે પહેલું નામ નીકળેલ છે આ સોસાયટીના સ્ટાફમાંથી તે છે ભાઈ જરગામ જાફરી સાહેબ. અલ્લાહ પાક તેમને આ ઝિયારત ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ મુબારક કરે અને આપણે સર્વેને અલ્લાહ પાક વારંવાર કરબલાની ઝિયારત નસીબ કરે. ઇલાહી આમીન. આ મોકા ઉપર સર્વે સ્ટાફ એલેમોઈના સ્ટાફ તરફથી તેમના માલિક આરીફભાઈ તેમ ફેરીદભાઈ ખમીસનો શુક્રિયા અદા કરવામાં આવે છે અને દુઆ કરે છે કે અલ્લાહ પાક તેઓને જઝાએ ખેર અતા કરે, તેઓને લંબી જિંદગી ઇનાયત કરે અને એટલી બરકત આપે કે વારંવાર આવા સારા કામમાં ઓર આગળ વધતા રહે. હું ગુજારિશ કરીશ મૌલાના એહતેશામ હૈદર રિઝવી સાહેબ પાસે કે અહીંયા આવી પોતાના મુબારક હાથે ભાઈ જરગામ જાફરી સાહેબને જામીનગીરી પહેરાવે અને તેઓને દુઆઓ આપે. મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ સલવાત. محمد وآل محمد. شراب ہے وہ کل کا مددگار ہے اس سے ہمیں بھی پیار ہے وہ دارا علی یا علی دارا علی یا علی لبیک یا حسین 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 لبیک یا حسین. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. والصلاة والسلام والتحیة والإکرام علی الرسول النبی الأمی الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ اسراء کی یہ آیت ہے جسے اس وقت کی مجلس کا عنوان قرار دیا گیا ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو.
वबिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ, अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, नेकी करो। कुरान मजीद ने जुजियात को बयान नहीं किया है, बल्कि उसूल बयान किए हैं, बल्कि उसूल से भी बालातर जवामिउल कलिम बयान किए हैं। यानी एक ऐसा कानून बयान किया है कि जिससे खुद 10 कानून 20 कानून जो है वो इस्तेमाल होते हैं। अहम से अहम, बड़ा से बड़ा हुक्म भी आधी आयत में अल्लाह ने बयान कर दिया, उसके बाद पलट कर दोबारा उसका कोई तज़किरा नहीं किया। क्योंकि कुरान का तरीका जो है गुफ्तगू का वो यही है कि तफसीलात कुरान मजीद ने बयान नहीं की है, उसूल बयान की है। मसलन नमाज का हुक्म दिया, अकीमुस सलात, नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो। कैसे पढ़े, कितनी पढ़े, इसका कोई तरीका कुरान मजीद में बयान नहीं किया गया। लेकिन एक मौजू और एक टॉपिक जिसे अल्लाह ने कुरान मजीद में बार बार बयान किया है, रिपीट किया है, वो है वालिदैन के साथ एहसान करना, वालिदैन के साथ नेकी करना, वालिदैन का हक, उनका मर्तबा, उनकी इज्जत, उनका एहतराम, उनके हुकूक, ये अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार कुरान मजीद में रिपीट किया है, इसकी तकरार की है। 14 मकामात है अंबिया की दुआओं के अलावा जहां अल्लाह ने वालिदैन के हुकूक, उनकी इज्जत, उनका एहतराम, उनका तस्करा किया। और 4 मकामात तो ऐसे हैं कि जहां अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तौहीद के बाद फौरन वालिदैन के साथ नेकी करने का हुक्म दिया है। जहां अपनी तौहीद का तस्करा किया, दूसरा कोई कानून अगर बयान किया है तौहीद के बाद, तो कहा वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। ये कुरानी हुक्म है। वालिदैन, वालिद और वालिदा, वालिद किसे कहते हैं? जाहिर हर इंसान जो इस कायनात में आया है सिवाय चंद हस्तियों के, वो एक बाप के जरिए से और एक मां के जरिए से इस कायनात में आया है। ये जो कहा गया वालिदैन के साथ एहसान करो, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। एहसान के मानी क्या है? एक उर्दू जबान में एहसान है, वो उर्दू वाला एहसान की बात नहीं है। यहां एहसान के मानी क्या है? एहसान अरबी में उस अमल को कहते हैं, उस काम को कहते हैं जिसमें 3 बातें पाई जाती हो। पहली बात कि इंसान को कहना न पड़े, बिन कहे, बिन मांगे, ख्वाहिश जाहिर किए बगैर इंसान उस काम को अंजाम दे। ये पहली बात है एहसान के लिए। दूसरी बात यह है कि उस काम को करने में सुरअत दिखाए, जल्दी करे। और तीसरी बात यह है कि इंसान खुद उस काम को अंजाम दे, बराह रास्त। बीवी से न कहे कि तुम ये काम करो, नौकर से न कहे कि आप ये काम कीजिए। ये 3 बातें जिस काम में पाई जाती हैं उसको एहसान कहा जाता है। मसलन बाप प्यासा है, अभी उसने कहा नहीं, आपने प्यास को महसूस किया, बाप की जरूरत को महसूस किया आपने, आप फौरन आगे बढ़े जल्दी, और आपने उसके सामने पानी पेश कर दिया, तो आपको मोहसिन कहा जाएगा। इंतजार न कीजिए कि वालिद वालिदा कोई काम कहे तब हम उसे करें, कहने के बाद अगर किया तो कौन सा कमाल किया। कुरान मजीद बार बार हुक्म दे रहा है, वबिल वालिदैन एहसान, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, वालिदैन के साथ नेकी करो।
वालिदैन की इताअत करो, उनकी बात मानो। चौथे इमाम हजरत अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन सल्लल्लाहु वसल्लम अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ने वालिदैन की इताअत को दो बातों की वजह से वाजिब करार दिया है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपनी इताअत को बंदों के ऊपर वाजिब करार दिया है। क्यों क्यों अल्लाह की इताअत वाजिब है? इमाम ने कहा कि दो बातों की वजह से अल्लाह की इताअत वाजिब है। एक ये कि उसने हमें खल्क किया है, वो हमारा खालिक है। दूसरे ये कि वो हमारा राज़िक है, हमारा रब है, हमें पालने वाला है। इमाम फरमाते हैं कि अगर वो तन्हा खालिक होता, उसने सिर्फ हमें पैदा किया होता और पालने वाला कोई और होता तो अल्लाह की इताअत वाजिब न होती। या ये कि वो सिर्फ हमारा रब होता, हमें खिलाने वाला होता, हमारा राज़िक होता, हमारा पालने वाला होता, मगर हमारा खालिक न होता तो फिर भी उसकी इताअत वाजिब न होती। उसकी इताअत दो बातों की वजह से वाजिब है। एक ये कि वो हमारा खालिक है और दूसरा ये कि वो हमारा रब है। चौथे इमाम फरमाते हैं इन्हीं दो बातों की वजह से वालिदैन की इताअत भी वाजिब है। हमारी और आपकी खिलकत का जरिया वो बने हैं। अल्लाह की ये दोनों सिफतें खालिकियत और रुबूबियत ये वालिदैन में जाहिर हुई है, वो जरिया बने हैं हमारे इस कायनात में आने का, और उन्होंने हमें पाला है। इसीलिए कहा कि जब दुआ करो तो कहो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह ने अपनी इताअत को वाजिब करार दिया और वालिदैन की इताअत को वाजिब करार दिया। लेकिन एक सवाल आपके सामने मैं रखता हूं, आप ये बताइए, ऐसा भी तो हो सकता है कि अल्लाह किसी बात का हुक्म दे और वालिदैन उसके अपोजिट, उसके खिलाफ किसी बात का हुक्म दे। भाई इसका इम्कान तो है ना। वो तो सिर्फ अल्लाह और मोहम्मद और आले मोहम्मद की इताअत में कोई इख्तिलाफ नहीं होता है, इसलिए कि मोहम्मद और आले मोहम्मद वो है वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। ये तो वही चाहते हैं जो परवरदिगार चाहता है। वहां कोई टकराव इताअत में नहीं है कि अल्लाह कुछ कहे, रसूलुल्लाह कुछ कहे, अल्लाह कुछ कहे और इमाम कुछ कहे। लेकिन वालिदैन के यहां तो ये पॉसिबल है, इम्कान है। तो यहां किसकी बात माने? एक बात का हुक्म अल्लाह ने दिया है और एक बात का हुक्म वालिदैन दे रहे हैं और दोनों में टकराव पैदा हो गया। किसकी बात माने? सोचिए आप भी, इतना आसान नहीं है। इसको थोड़ा सा तफसील इसके ऊपर देखिए। 5 चीजें हैं। एक है वाजिब, एक है हराम। ये हम सुबह से शाम तक जो काम अंजाम देते हैं, हम और आप जितने भी काम करते हैं, ये देखिए ये 5 किस्मों में से कोई ना कोई एक किस्म जो है वो इसमें होती है। या वाजिब है, या हराम है, या मुस्तहब है, या मकरूह है, या मुबाह है। यही 5 चीजें हैं। इंसान सुबह से लेकर 24 घंटे जो भी उसका अमल है या वाजिब है। वाजिब क्या है? वाजिब वो अमल है जिसका करना जरूरी है और अगर इंसान न करेगा तो गुनहगार होगा। हराम उस अमल को कहते हैं जिसको तर्क करना जरूरी है, अगर इंसान तर्क न करेगा तो गुनहगार होगा। मुस्तहब उस काम को कहते हैं जिसका करना बेहतर है, अगर इंसान करेगा तो सवाब का मुस्तहिक होगा, न करेगा तो कोई गुनाह भी नहीं होगा, कोई अजाब भी नहीं होगा। और मकरूह वो अमल है कि जिसको तर्क करने में सवाब है। मिसाल के तौर पर रात में खड़े होकर पानी पीना मकरूह है। इतना मसला तो सब जानते हैं। अगर इंसान खड़े होकर पानी पिएगा तो मकरूह काम अंजाम दिया है, उसको सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बैठ के पानी मिलेगा तो उसको सवाब मिल जाएगा। तो मकरूह वो काम है जिसके तर्क करने में। कहा मसलन कि आप कब्रिस्तान गए तो कब्रिस्तान पे जो कतबे लिखे रहते हैं ना, उसको पढ़ना भी मकरूह है। बहुत से उसके असरात भी बयान किए गए हैं रवायात में। 2 औरतें चल रही हैं,
आप उनके दरमियान से गुजर जाए, इसको भी मकरूह करार दिया गया। और मुबाह वो काम है कि जिसका करना न करना दोनों बराबर है, करेंगे तो कोई सवाब नहीं है, ना करेंगे तो कोई गुनाह भी नहीं है। ये 5 किस्में हैं। अब देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म दिया है, मुस्तहब्बात की बहुत बड़ी फहरिस्त है हमारे यहाँ। आप शरीयत की किताबों का, फिक़ही किताबों का, अहकाम की किताबों का मुताला करें, कितने मुस्तहब्बात बयान किए गए हैं रवायात में, और उलमा ने जो इस्तिंबात किया, कितने मकरूहात बयान किए गए हैं। तो ये जो 5 किस्में हैं, इसमें वालिदैन कहां हैं और अल्लाह कहां है? कहां अल्लाह की बात मानना है और कहां वालिदैन की इताअत करना है? देखिए, वाजिब और हराम जो है, इसमें अल्लाह की बात मानेंगे। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि नमाज पढ़ो, और वालिदैन ये कहे कि बेटा आज नमाज तर्क कर दो, वालिदैन की बात नहीं मानेंगे, अल्लाह की बात मानेंगे। वाजिब है। अल्लाह ने शराब को हराम करार दिया है, वालिदैन कहे बेटा थोड़ी सी शराब पी लो, नहीं, यहां वालिदैन की बात नहीं मानेंगे, अल्लाह की बात मानेंगे। यानी वाजिब और हराम ये 2 अहकाम ऐसे हैं कि जहां अल्लाह की बात मानेंगे, लेकिन इसके अलावा जो 3 किस्में हैं, मुस्तहब की, मकरूह की, मुबाह की, वहां अल्लाह ने वालिदैन को मुकद्दम किया है अपने ऊपर। काश आप तवज्जो फरमाएं, परवरदिगार आलम ने वालिदैन के मर्तबे को कितना बुलंद किया है। वाजिब और हराम में अल्लाह की इताअत करना है, मुस्तहब्बात में, मकरूहात में, मुबाह में वालिदैन की बात मानना है। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ना वाजिब है, लेकिन अव्वल वक्त पढ़ना वाजिब नहीं है, मुस्तहब है, बहुत सवाब है। अगर मां ने मना कर दिया, बाप ने मना कर दिया, बेटा अव्वल वक्त नमाज नहीं पढ़ो, किसकी बात मानेंगे? वालिदैन की बात मानेंगे। नमाज पढ़ना वाजिब है, मगर जमात से पढ़ना वाजिब नहीं है, मस्जिद में जाके पढ़ना वाजिब नहीं है। अगर मां बाप ने मना कर दिया, बेटा खबरदार मस्जिद ना जाना, किसकी मानेंगे? मां बाप की बात मानेंगे। नमाज शब पढ़ना कितना सवाब है, अगर मां ने मना कर दिया, बाप ने मना कर दिया, बेटा खबरदार नमाज शब ना पढ़ना, नमाज शब बंदा ना पढ़ेगा, पढ़ेगा तो गुनहगार है। अल्लाह क्या मर्तबा दिया है अल्लाह ने वालिदैन को, यानी वाजिब और हराम में अल्लाह ने अपने को मुकद्दम रखा है, बाकी अहकाम में अल्लाह ने वालिदैन को मुकद्दम कर दिया है, ताकि तुम माँ बाप की अजमतों को पहचानो। और जब माँ बाप की अजमतों को पहचानोगे तो फिर उनको पहचानोगे जिनके जरिए और सदके में हमने तुम्हारे माँ बाप को भी पैदा किया है। पहचाने अजीजों, कुछ गुनाह ऐसे हैं, कुछ बुराइयां ऐसी हैं जो इंसान ने इस दुनिया में की, अल्लाह भूला नहीं है। समझते हैं कि हम भूल गए तो अल्लाह भी भूल गया, नहीं, इसका हिसाब होगा क़यामत में। नेकियां की, अच्छाई किए, हम भूल गए करके, अल्लाह के यहां सब महफूज है, क़यामत में हिसाब होगा। फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा। लेकिन कुछ बुराइयां और कुछ नेकियां ऐसी हैं कि जिनकी जजा या सजा आखिरत में तो बाद में मिलेगी, दुनिया में पहले मिल जाती है। कुछ अच्छे काम ऐसे, उनमें से एक अच्छा काम है वालिदैन के साथ नेकी करना, वालिदैन के साथ अच्छाई करना। इसकी जजा जो अल्लाह क़यामत में देगा वो तो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन दुनिया में भी इसकी जजा मिलती है। वालिदैन के साथ अगर किसी ने बुराई की है, बुरा सलूक किया है, आखिरत में सजा बाद में मिलेगी, दुनिया में इंसान पहले जलील और रुसवा हो जाएगा। चौथे इमाम फरमाते हैं कि मेरा ये पैगाम जाकर लोगों को दे दो। ये मैं नहीं कह रहा हूं अजीजों, ये चौथे इमाम हमारे और आपके फरमा रहे हैं, कहा जाके कह दो हुसैन के बेटे अली ज़ैनुल आबिदीन का पैगाम लोगों को सुना दो कि जितनी चाहे नमाजें पढ़ लो, जितने चाहे रोजे रख लो, जितनी चाहे दुआएं कर लो, अगर वालिदैन नाराज है तो तुम्हारी नमाजों का कोई फायदा नहीं। वालिदैन को राजी करो, इनकी रजा अल्लाह की रजा है, इनकी नाराजगी अल्लाह की नाराजगी है। कैसी है वालिदैन, इससे बहस नहीं है। मोमिन है, मुनाफिक है, काफिर है, ये अल्लाह ने मर्तबा माँ बाप को दिया है। आखिरत में क्या होगा इन माँ बाप का, ये
परवरदिगार जाने, लेकिन हम दुनिया में उनके बेटे हैं, उनकी औलाद हैं, तो हमारी जिम्मेदारी माँ बाप के सिलसिले में है वला तकुल लहुमा उफ। जवाब देना तो बड़ी बात है, उफ भी ना कहो उनके सामने। अपने शानों को, अपने बाजुओं को झुकाए रखो उनके सामने। ये कुरानी मोमिन है। सिर्फ नमाज पढ़ लेना, अल्लाह के सामने झुक जाना, ये कमाल नहीं है, बल्कि कुरान मजीद की तालीमात की रोशनी में जिंदगी गुजारना, इसे वाकई हुसैन वाला कहा जाता है। इन मजालिस से हमने कुछ सीखा है। वालिदैन के साथ अल्लाह के एक पैगंबर हैं, कुरान मजीद में बड़ी तफसील के साथ उनका तस्करा किया है। देखिए, कुरान में 25 अंबिया ऐसे हैं कि जिनका नाम लेकर अल्लाह ने जिक्र किया, 25 नबी ऐसे हैं, लेकिन एक जगह के ऊपर तस्करा नहीं। मुख्तलिफ सूरों में कुरान मजीद में अल्लाह ने अंबिया का जिक्र किया, लेकिन एक नबी वो है कि जिनके नाम पर पूरा सूरा 111 आयतें हैं, हजरत यूसुफ से मुताल्लिक। हजरत यूसुफ नबी खुदा है, कुरान मजीद ने उन्हें सराहा है, जवानों के लिए नमूना करार दिया है। इस कुरान को ने इसे अहसनुल कसस करार दिया, बेहतरीन किस्सा करार दिया है जनाब यूसुफ के किस्से को। 111 आयतों में हजरत यूसुफ का तस्करा है। लिखा है कि हजरत यूसुफ अपनी सवारी के ऊपर सवार थे, बड़े एहतशाम के साथ, जाहो हशम के साथ, और वो वजीर है और मुशीर है, हटो बचो पूरे एक तो हुकूमती प्रोटोकॉल है, उसके साथ जनाब यूसुफ की सवारी जा रही है, बैठे हैं घोड़े के ऊपर, साथ में सब वजीर वज़रा काबिरीन सल्तनत जो है वो चल रहे। उधर जनाब याकूब आ रहे हैं, जनाब यूसुफ के वालिद। जाहिर है कि अब एक जमाने के बाद, एक मुद्दत के बाद बाप और बेटे में मुलाकात हुई है। जनाब यूसुफ ने दूर से देखा कि मेरे बाबा आ रहे, उधर याकूब ने भी देख लिया। जनाब याकूब ने जैसे ही बेटे को देखा, एक मर्तबा बेटे की मोहब्बत में और शौक दीदार में घोड़े से कूद पड़े, पैदल चलने लगे। जनाब यूसुफ ने देखा, सोचा कि हम भी घोड़े से उतर जाए, मेरा बाप पैदल चल रहा है, मगर कहा हुकूमती जाहो हशम है और ये वजीर है, सल्तनत है, शायद ये शान शौकत के खिलाफ हो, लिहाजा वो घोड़े के ऊपर सवार रहे। मगर फिर फौरन ये फैसला किया कि नहीं, जब बाप पैदल चल रहा है तो मुझे भी पैदल चलना चाहिए। जनाब यूसुफ घोड़े से कूद पड़े और पैदल चलने लगे। जैसे ही यूसुफ और याकूब बेटे में मुलाकात हुई और गले लगाया है, जनाब जिब्रील आ गए। यूसुफ, अल्लाह का सलाम आपके लिए, अल्लाह ने सलाम कहलाया है। और उसके बाद कहा, यूसुफ अपना दाहिना हाथ खोलो। जनाब यूसुफ ने अपना दाहिना हाथ खोला। जैसे दाहिना हाथ खोला, एक नूर जो है वो निकला हाथ से और आसमान की तरफ चला गया। हजरत यूसुफ ने कहा, जिब्रील ये क्या? कहा कि यूसुफ, ये नूर नबूवत है, तुम्हारी नस्ल में अब कोई नबी नहीं रहेगा, तुम नबी रहोगे, लेकिन अल्लाह जो ये इनाम देना चाहता था, तुम्हारी नस्ल में नबूवत चलने वाली थी, अल्लाह ने नबूवत को, रिसालत को तुम्हारी नस्ल से ले लिया है। क्यों जिब्राइल? कहा इसलिए कि तुमने अपने बाप के एहतराम में उतरने में थोड़ी ताखीर कर दी, परवरदिगार को यह ताखीर गवारा नहीं है। इसलिए कहा गया, बाप के आगे आगे ना चलो, बाप से बुलंद जगह के ऊपर ना बैठो, बाप का नाम लेकर ना पुकारो, बाप की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद ना करो। अजीजों, पहचाने, अगर दुनिया हासिल करना चाहते हैं, मैं अजीजों रवायात का खुलासा आपके सामने अर्ज करूं 2 जुमलों में, कि अगर दुनिया चाहते हैं तो मां बाप का एहतराम करें, आखिरत चाहते हैं तो मां बाप का एहतराम करें। माँ बाप के साथ एहसान करें, नेकी करें, उनके लिए इस्तिग़फ़ार करें, चाहे माँ बाप दुनिया में हो या दुनिया से चले गए हो। ये नहीं दुनिया से चले गए तो हमारी जिम्मेदारी अब खत्म हो गई, ये नहीं। आप जानते हैं आक़े वालिदैन के सिलसिले में, आक़े वालिदैन, जन्नत की खुशबू कितनी दूर से आ रही होगी, 500 साल के फासले से इंसान जन्नत की खुशबू को महसूस करेगा, मगर कहा जो आक़े वालिदैन है वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। जन्नत में जाना तो बड़ी बात है। हमारे उलमा में से एक बुजुर्ग आलिम, यकीनन आपने नाम सुना होगा, मरहूम आयतुल्लाह उज़्मा आग़ा मरशी नजफी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह। बहुत बड़ा किताब खाना है, लाइब्रेरी है क़ौम मुक़द्दस में, बहुत ही बुजुर्ग उलमा में, मराजे में, फ़ुक़हा में, उलफ़ा में
बड़ी करामात इनकी नकल हुई है, किताब इनकी है करामातुल मरशिया। आयतुल्लाह मरशी कहते हैं कि हमने जो इन कमालात की मंजिलों को तय किया है, इतने मकाम पर पहुंचे हैं, इतना बड़ा अल्लाह ने हमको शरफ दिया है कि हम खादिम अहले बैत बन गए। इसकी क्या वजह है? वो खुद अपनी दास्तान नकल करते हैं। कहते हैं कि एक दिन हमारी वालिदा ने हमको हुक्म दिया, हमसे कहा कि बेटा जाओ, और जाने के बाद खाने का टाइम था, अपने वालिद को बुला लाओ। कहते मैं वालिद के हुजरे में गया, उनके कमरे में गया, तो मैंने क्या देखा कि वालिद पढ़ते पढ़ते किताब उनके सीने के ऊपर है, वो आंख उनकी लग गई है। उधर माँ कह रही है कि बुला के लाओ, दस्तरखान लगा है, खाना खा ले। इधर वालिद सो गए हैं। आयतुल्लाह मरशी ने सोचा कि अब मैं इनको जगा दूं, इनकी नींद खराब करूं, ये भी मुनासिब नहीं है, और उधर वालिदा इंतजार कर रही दस्तरखान पे, क्या किया जाए। कहते हैं कि ये बैठ गए और अपने लबों से बाप के तलवों को चूमना शुरू किया। बाप के तलवों को, उनके कदमों को, पैरों को अपने लबों से बोसा लेने लगे, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। एक मर्तबा आयतुल्लाह मरशी की आंख खुली, वालिद की इनकी आंख खुली, देखा अपने बेटे को देखा। एक मर्तबा दिल से दुआ निकली, हाथों को बुलंद किया, परवरदिगार मेरे बेटे को अपना बंदा बना ले, मेरे बेटे को अपने दीन का खादिम बना ले, मेरे बेटे को सालेहीन में शुमार कर। आयतुल्लाह मरशी कहते हैं कि मैं जिस मकाम तक पहुंचा हूं, इसमें मेरे वालिद की इस दुआ का असर है। मेरे अजीजों, मेरे जवानों, खास करके अल्लाह अगर आपके वालिदैन जिंदा है उनको सलामत रखे, और दुनिया से जा चुके हैं तो हम सब के वालिदैन के ऊपर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। वालिदैन के साथ नेकी करो, बहुत बड़ा आपका ये दीनी शरई कुरानी वजीफा है। उनके लिए इस्तिग़फ़ार करो, अगर वो मक़रूज़ है उनके कर्ज को अदा करो। अच्छे हो, बुरे हो, काफिर हो, मोमिन हो, इससे कोई बहस नहीं है। बस वही वाजिबात और हराम में उनकी बात नहीं माननी है, बकिया उनका एहतराम करना है। ये दर्स हमको करबला ने दिया है, ये दर्स हमको अहले बैत अतहार ने दिया है। बंदगी के रास्ते को तय करना है तो ख्वाहिशात नहीं होनी चाहिए, बल्कि हुक्म खुदा की हुक्मरानी होनी चाहिए। कानून परवरदिगार की हुक्मरानी हमारे जिस्म के ऊपर होनी चाहिए। नफ्स क्या कहता है, ख्वाहिश क्या कहती है, समाज क्या कहता है, माशरा क्या कहता है, सोसाइटी क्या कहती है, नहीं, देखो खुदा क्या कहता है, नबी क्या कहता है, इमाम क्या कहते हैं। कितना बुलंद कर दिया है उन्होंने। लेकिन अजीजों, माँ बाप भी औलाद से बेहद मोहब्बत करते हैं, मगर करबला में हमने देखा ज़ौजा भी शौहर से मोहब्बत करती है, माँ बाप भी मोहब्बत करते हैं। माँ बाप खुद कुर्बान हो जाएंगे, खुद परेशानियों में पड़ जाएंगे, मगर बच्चे के ऊपर मुसीबत नहीं आने देते हैं, बच्चों के ऊपर परेशानियां नहीं आने देती हैं। लेकिन करबला के मैदान में एक अजीब माहौल है कि माँ अपने बच्चे से कह रही है, मेरे लाल अभी तक तुम मैदान में नहीं गए। माँ कह रही है, बेटा देखो हमें शहजादी फातिमा के सामने शर्मिंदा न करना, ऐसा न हो कि अली अकबर कत्ल कर दिए जाए और तुम जिंदा रहो, ऐसा न हो कि कासिम कत्ल कर दिए जाए और तुम जिंदा रहो। आजादारो, ये कुर्बानी दी है करबला वालों ने। सलाम हो इमाम हुसैन के ऊपर, उनके फर्जंद अली इब्न हुसैन के ऊपर, उनके बावफा असहाब के ऊपर। मुसलसल आप मजालिस में मसरूफ हैं, मजालिस अज़ा मुनक़िद कर रहे हैं, इमाम हुसैन के ऊपर गिरिया कर रहे हैं, सलाम पढ़ते हैं, नौहा पढ़ते हैं। लेकिन अजीजों, मैं आपको एक सलाम इमाम ज़माना का सुनाऊं। इमाम ज़माना अपने जद को कैसे सलाम करते हैं। ज़ियारत नाहिया के अल्फाज है, फरमाते अस्सलामु अलल मुग़स्सल बिदमिल जराह, मेरा सलाम हो उस हुसैन के ऊपर जिसे खून से गुस्ल दिया गया। फरमाते हैं अस्सलाम अला शैबिल खजीब, मेरा सलाम हो उन महासिन के ऊपर, उस दाढ़ी के ऊपर जिसे खून से खिजाब दिया गया। फरमाते हैं अस्सलाम अला आज़ाइल मुक़त्तआत, मेरा सलाम हो उन आज़ा के ऊपर जिन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया गया।
अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह इन आवाज़ों के ऊपर रहमत नाज़िल फरमाए जो करबला वालों के गम में बुलंद हो रही है। फ़ज़ाए करबला में आवाज़ गूंजी, अला क़ुतिल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बे करबला, हुसैन शहीद कर दिए गए, ज़हरा के लाल का लाशा जमीन करबला पर पड़ा है। ए अज़ादारों, अब लाश हुसैन को लूटा है जालिमों ने। कोई हुसैन का मामा लूट कर ले गया, कोई हुसैन की जरा लूट कर ले गया, कोई हुसैन की नालैन लूट कर ले गया। एक जालिम आगे बढ़ा, उसने इमाम हुसैन की अंगूठी को लूटना चाहा। जैसी अंगूठी को उतारना चाहा, हाथ में सूजन थी, उंगली में सूजन थी, अंगूठी नहीं उतरी। तो जालिम ने क्या किया, दो पत्थर लिए, एक पत्थर के ऊपर हुसैन की उंगली रखी, दूसरे पत्थर से हुसैन की उंगली के ऊपर वार किया, हुसैन की उंगली कट गई। कौन तसव्वुर कर सकता है ज़ादारों इन मसाइल को। ये लुटा हुआ काफिला करबला से रवाना हुआ, कूफे पहुंचा है। और इधर बनी असद की औरतों ने बनी असद को गैरत दिलाई कि हुसैन का लाशा करबला की जलती हुई जमीन पर पड़ा है। हुसैन ने तो तुमसे वसीयत की थी कि हमारे लाशों का ख्याल रखना, अगर तुम लोग इमाम हुसैन और उनके असहाब के लाशे को दफन करने न जाओगे तो हम औरतें होकर जाएंगे, लाशों को दफन करेंगे। बनी असद ने कहा कि रात की तारीकी में और रात के सन्नाटे में हम जाएंगे, आका के लाशे को दफन करेंगे, शोहदा के लाशे को दफन करेंगे। 12 मुहर्रम की तारीख आई, रात की तारीकी है, रात का सन्नाटा है। एक मर्तबा अपने हाथों में बेलचे लिए हुए बनी असद मख्तल में आए हैं, करबला की सरजमीन मख्तल में पहुंचे हैं। तो एक मर्तबा देखा चारों तरफ लाश के टुकड़े पड़े हुए। समझ में नहीं आता कौन सा किसका लाशा है, पहले कौन सा लाशा दफन करे। लाश के टुकड़ों को जमा किया, दफन करते रहे। एक मर्तबा क्या देखा कि कूफे की तरफ से कोई सवार चला आ रहा है, कूफे की तरफ से कोई सवार चला आ रहा है। बनी असद समझे कि शायद हाकिम कूफा को खबर हो गई और उसके सिपाही आ गए हैं। बस एक मर्तबा बनी असद झाड़ियों में जाके छिप गए। मगर बनी असद कहते हैं जब आने वाला आया मख्तल में, घोड़े से कूद पड़ा, आवाज दी अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। फिर कहा बनी असद झाड़ियों से बाहर निकला हो, हम भी तुम्हारे साथ मजलूम के लाशे को दफन करने के लिए आए। बनी असद कहते हमारे वाले सवार का साथ दे रहे थे और वो लाशा दफन हो रहा था, लाशा दफन कर रहा था। और यहां तक कि कहते हैं कि एक नशेब में पहुंचा जहां एक लाशा पड़ा हुआ था और उस लाशे से नूर की शुआएं बुलंद हो रही थी। हमने कहा आने वाले सवार हम आपका साथ दे, कहा नहीं, इसको दफन करने के लिए पहले से मेरे साथ नासिर और मददगार मौजूद है। कहते हैं उस लाशे पे बैठ के बहुत रोया और उस लाशे को दफन किया। हमने कहा आने वाले सवार सारे लाशे दफन हो गए, कहा भी एक लाशा फुरात के किनारे पड़ा है। बनी असद कहते हैं वो आने वाला सवार फुरात के किनारे उस लाशे पर आया। कहते हैं बैठकर इतना रोया कि इतना उस लाशे पर भी नहीं रोया था जो नशेब में पड़ा था। ऐ चचा, आपके बाद खेमों में आग लगा दी गई। ऐ चचा, आपके बाद भूमियों के सरों से चादरें छीनी गई। ऐ चचा, आपके बाद आपके सकीना को तमाचे मारे गए। ऐ चचा, आपके बाद हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाली। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बहक़ फ़ातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा, या अल्लाह हमारी सज़ा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा।
या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का बानियान मजलिस हाज़रीन मजलिस के दिली मकासिद को पूरा फरमा। या अल्लाह हम सबको अपनी इबादत और इताअत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन के हुकूक को अदा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का दुनिया में जहाँ जहाँ अहले बैत अताहर के चाहने वाले मौजूद है सबकी जान माल इज्जत आबरू नामूस की हिफाजत फरमा। परचमे इस्लाम को सरबलंद फरमा, परचमे कुफ्र शिरक को सरनगू फरमा। उलमाए कराम मराजा इज़ाम की हिफाजत फरमा। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सबको उनके आवाल व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। थे कहाँ आए बाबा जान, नन्ना सगला तीर से छिड़ा खून जब बहा कर्ज़े करबला, खून जब बहा कर्ज़े करबला, तेरे पर वो खून आई ने मला, आप थे कहाँ आए बाबा जान, जिन गई रिदा आप थे कहाँ आए बाबा जान। मश्क की तरह फिर जब चला मेरे शेर का बाजू जब कटा, मेरे शेर का बाजू जब कटा, मश्क जब छिली गुर्जा जब लगा, आप थे कहाँ आए बाबा जान, छिन गई रिदा क्या, आप थे कहाँ आए बाबा जान। बोलूंगी न मैं वो दर्द की घड़ी, चल रही थी जा पाई पर छुरी, चल रही थी जा पाई पर छुरी, दे रही थी मैं उस गरी सदा, आप थे कहाँ आए बाबा जान, छिन गई रिदा करू जर गया, आप थे कहाँ आए बाबा जान, रन में कट गया आई का गला, आप थे कहाँ आए बाबा जान। या हुसैन तू ही मेरा रहनुमा हुसैन हुसैन, तू ही मेरा आसरा हुसैन हुसैन, तू ही मेरा रहनुमा हुसैन, तू ही मेरा आसरा हुसैन हुसैन, तू ही मेरा रहनुमा हुसैन, तू ही मेरा आसरा हुसैन हुसैन। है ये तमन्ना के बस नसीब हो, प्यार ते करे वो भला हुसैन हुसैन, तू ही मेरा रहनुमा हुसैन हुसैन, तू ही मेरा आसरा हुसैन हुसैन, तू ही मेरा रहनुमा हुसैन हुसैन, तू ही मेरा आसरा हुसैन। हम हुसैनियों का ये ऐलान है, करबला पे जान भी कुर्बान है। हम हुसैनियों का ये ऐलान है, करबला पे जान भी कुर्बान है। दिल में शहादत का ही अरमान है, होठों पे हर दम सदा हुसैन हुसैन, तू ही मेरा रहनुमा हुसैन हुसैन, तू ही मेरा आसरा हुसैन हुसैन, तू ही मेरा रहनुमा हुसैन, तू ही मेरा आसरा हुसैन हुसैन। दे रहा है ये सदा अजानों में, माँ
مانگتا ہے دعا نمازوں میں، دے رہا ہوں یہ صدا اذانوں میں، مانگتا ہوں یہ دعا نمازوں میں، دل میں ازا کھانے حسین ہو، آنکھوں میں اشک ازا حسین حسین، تو ہی میرا رہنما حسین، تو ہی میرا آسرا حسین حسین، تو ہی میرا رہنما حسین حسین، کربلا کی وادیوں سے آج بھی حور کی آ رہی ہے ایک صدا یہی، کربلا کی وادیوں سے آج بھی حور کی آ رہی ہے ایک صدا یہی، روشنی کرے اندھیری قبر میں، ساتھ ہو کھا کے شفا حسین حسین، تو ہی میرا رہنما تو ہی میرا آسرا حسین حسین، تو ہی میرا رہنما حسین، تو ہی میرا حسین حسین، ہے یہ تمنا کہ بس نصیب ہو زیارت کرب و بلا حسین حسین، تو ہی میرا رہنما حسین حسین، تو ہی میرا آسرا حسین حسین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم يا جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولى وابن مولى، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا سلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفينا وشفي والدينا في يوم الجزاء. السلام عليك وعلى أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته.